Good afternoon, Ms. Shivangi Parmar, Assistant Professor of English Method in Sattar Memorial College of Education. Thank you, ma'am, for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, ma'am, would you like to tell few words about yourself? Thank you. Good afternoon. My name is Shivangi Parmar, and I have done my graduation from Patna University, and I have done my MA from St. Xavier's College of Education. Then after I have joined this prestigious college, and I am here for the English method, pedagogy of English, and I would like. My hobby is mainly teaching students, and I want to contribute my service in the teaching profession. As you know that teaching is the most noblest profession. So I want to enhance my skills in this sector, and I would like to give my service. Thank you, ma'am. Thank you for your brief introduction. Ma'am, being the faculty of Department of Education, what are your roles and responsibilities towards the students? As being a faculty in education department, it's a big responsibility, and it's a big duty for us, because education is the foundation of our society. So here I am here for teaching teachers, educators, prospective teacher. This is the big responsibility of education department, and I am here the faculty of English pedagogy, and also teach the learning and teaching paper. So, and education is the foundation of our society and nation. So this is our responsibility. Ma'am, how do you tend to establish healthy relationship with the student and fellow faculties? Yes. And as a NCF 2005 states that constructivism is the main basic foundation of the classroom. So classroom should be constructive, means interaction. So class is based on interaction. So, and class environment is conducive for learning for students, and socio-emotional climates. Socio-emotional climate should be in the classroom. Ma'am, how do you tend to establish a healthy relationship with student and fellow faculties? Healthy relationship is very essential for teaching and learning. So it should be based on interaction, and class should be interactive and cooperative. Means class को ऐसे ढंग से चलाइए कि जिसमें बच्चे फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और वो अपनी समस्याओं को हमारे पास ला सके, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को करना चाहिए। और जैसा कि वर्क प्लेस पे हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट जो होना चाहिए वो सोशल इमोशनल होना चाहिए। मीन्स आप दूसरे को जैसे एज दे आर वी आर एक्सेप्टेड, मतलब जैसे हैं वो लोग वैसे हम लोग एक्सेप्ट करें। सबके इंडिविजुअल यूनिकनेस है, तो उस यूनिकनेस को हम लोग एक्सेप्ट करें। इस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे क्लास में एस्टैब्लिश। मैम, how do you help your student to cope up with the competition, because the competition is being so high in outside world? As you know that healthy competition is very necessary for our individual development, and so ऐसा क्लास में नहीं होना चाहिए। चाहे ऐसे बच्चों को नहीं समझना कि आप कंपटीशन करो, बट ये नहीं कि आप किसी दूसरे को हार्म करके करो, ऐसा नहीं। आप हेल्दी कंपटीशन रखो और हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ आप आगे बढ़ो, एक दूसरे को भी एक्सेप्ट करो, दूसरे से लर्न भी करो। कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग की आजकल बात हो रही है, तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं और उसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Ma'am, how do you strategize the curriculum and how often it gets updated to make beneficial for the student? As you know that curriculum is dynamic in nature, means करिकुलम को हमेशा चेंज होते होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। जैसी सोसाइटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम चेंज होनी चाहिए।
मीन्स अभी सोसाइटी की नीड है कि टेक्नोलॉजी एडेड, टेक्नोलॉजी भी एडेड है हम लोग के करिकुलम में। एंड वैल्यूज़, जो हमारे वैल्यूज़ अभी गिरते जा रहे हैं, उस वैल्यूज़ को एडिशन, वैसे करिकुलम होनी चाहिए कि वैल्यूज़ एडेड हो। और मीन्स कि क्रिएटिविटी आनी चाहिए, क्रिएटिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम। So curriculum is, as you know, that curriculum is the foundation of our education, and as all we know that कि curriculum एक teachers के लिए क्या हाथ में एक material के तरह होते हैं कि उसको teachers जैसे ढाले वैसा बन सकते हैं। तो मीन्स करिकुलम को ऐसा बनना चाहिए कि अब करिकुलम ऐसा ये नहीं कि सिर्फ क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़, मीन्स प्रैक्टिकली बाहर भी उसको बच्चे अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। जो भी लर्निंग अभी यहाँ हो रही है वो बाहर उस लर्निंग को यूज कर सके। मीन्स करिकुलम ऐसे प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर चेंजिंग सोसाइटी, उस पर बेस्ड होने चाहिए। Okay, ma'am. Ma'am, at last, what valuable advice would you like to give to the student for their prosperous career ahead? This is our great responsibility. स्टूडेंट्स को स्किल्डफुल बनाए और वो ऐसे कॉम्पिटेंट बनाए कि बाहर जाएं, बाहर की जो भी समस्याएं हैं उसको लड़ सकें। क्योंकि हम लोग ऐसे जानते भी हैं कि एजुकेशन ही एक वीपन है जिसके द्वारा हम लोग बदल सकते हैं। तो अभी जो हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को तैयार करें, कि जो हम इस टीचर्स को तैयार करें वो आगे जाकर हमारे देश के भविष्य को तैयार करेंगे। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। इसलिए ऐसे टीचर को स्किल्ड बनाएं कि जो स्किल हम लोग उनको अंदर डाल रहे हैं वो स्किल वो आगे जाके जो जनरेशन है उसको डालें, और वो स्किल उनके लाइफ में इंस्टिल हो और उस स्किल से वो लोग आगे बढ़ सके। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं टीचिंग लाइन जो हम लोग चुनते हैं तो ऐसा नहीं कि अब टीचिंग इधर कर रहे हैं फिर दूसरे से कोई साइड में दूसरे भी करियर का ऑप्शन रखें। नहीं, टीचिंग को आप ऑप्शन नहीं रखें, एज ए मेन करियर लेकर चलिए। क्योंकि अगर टीचिंग में आने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो और एज ए मेन करियर लेकर चलते हो तो आप मोटिवेटेड हो, तो उस तरह की लर्निंग, उस तरह की एजुकेशन आप दूसरे बच्चे स्कूल में जाओगे वहाँ दोगे। बट अगर आप लिए हो कि हाँ साइड में टीचिंग लिए हुए हैं और इधर कुछ और कर रहे हैं, मीन्स कि आपका दिमाग यहाँ नहीं, बस एज ए जॉब सिक्योरिटी आप ले लियो कि कहीं और कुछ नहीं हुआ तो आप टीचिंग में आ गए। तो ऐसा नहीं सोचिए, आप टीचिंग को एज ए नोबल प्रोफेशन लीजिए और उसको इस तरह से लीजिए कि आगे जाकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग अच्छे से निभाएं। ऐसा जैसे हम लोग पेपर पे ही से बात करते हैं कि हाँ हमारे देश की शिक्षा अच्छी नहीं है, उसमें सुधार की ज़रूरत, तो सुधार कौन करेगा? हम और आप ही करेंगे। तो हम वैसे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को तैयार करें कि जो आगे चलकर अपने तरह अच्छे सिटीजन्स को वो तैयार करें। Thank you, ma'am. Thank you for your valuable advice. Thank you so much.